Okay, good morning everybody. Good morning to all my dear student of class 11 science. So welcome, join the class because today lecture is very much important. As already I forward the message to you before starting the class. Okay, so I think today most of the students have been joined till now. I can see in our chat option. Okay, so first of all, please make sure that am I audible and visible to everybody? Is the board very much clear to you? Am I audible? And the board is visible to you? Please text any one of you. Okay. Good. Shabash. Okay. So now what we have to do now, today we have to discuss a very much important topic of the chemical equilibrium chapter. Actually, today you will discuss the last topic of the chemical equilibrium, and from next week I will start the ionic equilibrium. Okay, today your chemical equilibrium part will be finished. So if you remember that yesterday what we were discussing the Lee-Chatelier principle. We started the Lee-Chatelier principle, and in that principle what we were discussing how the effect can be arises in an equilibrium. So what we discussed that if the effect of the temperature, pressure or the concentration take place in any equilibrium, then the equilibrium will shift towards that direction where these effect can be minimized. मतलब अगर आपने राइट साइड में कोई इफेक्ट लगाया तो उसको मिनिमाइज करने के लिए लेफ्ट साइड में इफेक्ट आ जाएगा. लेफ्ट साइड में कोई चीज बढ़ा दी तो उसको अगर हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो इक्विलिब्रियम बैलेंस हो जाएगा. So that topic we were discussing yesterday, and now my dear, yesterday we discussed the two factor, and which two factor we discussed? The first factor we discussed effect of the temperature, and the second factor we discussed the effect of the pressure on any equilibrium. ठीक है, तो फिर से एक चीज बता देता हूं, है ना, because we discussed about the Lee-Chatelier principle, and in that principle, ठीक, yesterday we discussed the two factor. ये दो फैक्टर आप पढ़ चुके थे, है ना. What the first factor we discussed? The effect of temperature. ठीक है ना. So effect of the temperature मैंने आपको बहुत आसान तरीका एक सिखाया था. How will you discuss that? You please check the sign of delta H. If it is negative or it is positive. If the delta is the negative, what you can say, the reaction will be exothermic. If the delta H will be the positive, then the reaction will be endothermic. And based on that, we can discuss the effect of the temperature on any equilibrium. और इसके हिसाब से आप किसी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को पढ़ पाए थे. मैंने बोला था डेल्टा H अगर नेगेटिव है, अगर डेल्टा H नेगेटिव है तो याद है ना रिएक्शन किधर बढ़ाना पड़ेगा. तो आपने बोला था लो टेम्परेचर विल फेवर, है ना, लो टेम्परेचर विल फेवर. और इस डायरेक्शन पे हमारा जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा दैट विल बी शिफ्ट टुवर्ड्स द बैकवर्ड डायरेक्शन. ओके, द सेकंड we discuss that if the delta H is the positive, then high temperature will favor करेगा और इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में चला जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन. So this topic we discuss कि what is the effect of the temperature on any equilibrium reaction. फिर आपने पढ़ा the second factor we discussed, and that was effect of pressure. Actually today dear we will solve some question based on that. इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर इसको रिवाइज करने के बाद मुझे तुम्हें क्वेश्चन लगाने कि आपका इस टॉपिक पे सवाल आता कैसे. दैट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है ना. और मैंने आपको पहले ही बताया था ये कंपटीशन लेवल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. So whenever we have to discuss the effect of the pressure, we have to check the number of the moles of the product and the reactant. Okay, so three conditions are there: either the number of the moles of the products are more, or the number of the moles of the products are less, or the number of the moles of the product are equal to the number of the moles of the reactant. तो अगर किसी भी इक्विलिब्रियम के लिए पहली कंडीशन आएगी
तो what the effect will come? No effect of pressure on equilibrium, है ना? This is the first concept. Given the number of the moles of the product are equal to the number of the moles of the reactant for any equilibrium reaction, then there will be no change will come if you will increase the pressure, decrease the pressure, whatever, because we have to check the number of the moles of the product side and the reactant side. तो अगर हमारे दोनों साइड के मोल्स बराबर हैं तो उस इक्विलिब्रियम पे आप कितना भी प्रेशर बढ़ा दो घटा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे. सेकंड थिंग इज दैट अगर हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बन गया है ना, इफ द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट आर मोर देन द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट, इसका मतलब राइट हैंड साइड ज्यादा हो गया, राइट हैंड साइड ज्यादा हो गया, फिर भी अगर हमें इक्विलिब्रियम करना होगा देन व्हाट विल हैपन, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट व्हिच डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन. देन अगर नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट कम है और रिएक्टेंट ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट बढ़ाना पड़ेगा. व्हाट वी कैन से दैट द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन पे घूम जाएगा. दैट इज देयर. एक और बड़ी मजेदार बात, अगर इन जनरल, इट इज नॉट मैंडेटरी बट इन जनरल प्लीज रिमेंबर दैट, जनरल अगर हम बात करें, अगर लो टेम्परेचर होगा तो हाई प्रेशर, है ना, प्लीज रिमेंबर, एंड एट द हाई टेम्परेचर देन लो प्रेशर. इट्स जनरल माइंड, इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स नॉट मैंडेटरी बट इट्स अ जनरल कॉन्सेप्ट. ये जनरल कॉन्सेप्ट है कि अगर कहीं पर हमें लो टेम्परेचर देना होगा तो प्रेशर हाई हो जाएगा, कहीं पे हाई टेम्परेचर होगा तो लो प्रेशर होगा. सो दिस टॉपिक वी डिस्कस यस्टरडे. If you want to take the screenshot of this page, you can take, because this is very much important. So is it important to everybody? Is it okay? No doubt I am asking the wrong question. No doubt this is important, my dear. So is it okay to everybody? Till now, is anyone having any doubt? यहां पर कोई डाउट तो नहीं है भाई? Anybody please text me. Okay, good. Because now I have to move in a forward way. Next topic पढ़ाना होगा. So is it okay to everybody? Please text all of you. Okay, good. Shabash. Now, so this is the effect of the temperature. This is the effect of this pressure. And now we are going to discuss the effect of concentration. Okay. The next topic now we are going to discuss, that is the effect of the concentration on any equilibrium. ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा अब वो पढ़ना है. कंसंट्रेशन का सीधा सीधा मतलब क्या हुआ, अमाउंट. अमाउंट का सीधा सीधा मतलब किससे हुआ, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट. सो द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज द इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑन एनी इक्विलिब्रियम. ठीक है, चलो. सो द थर्ड हेडिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस, the third heading we are going to discuss, that is effect of concentration on equilibrium, है ना. अमाउंट के हिसाब से इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा वो जानना. बहुत आसान है, कंसंट्रेशन को लिखना तो बाएं हाथ का खेल है, बड़े आसानी से आप कर लोगे. ठीक है. सो द थर्ड हेडिंग इज, थर्ड फैक्टर, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, effect of concentration on equilibrium, है ना. इक्विलिब्रियम पे कोई रिएक्शन अगर है तो वहां पर इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन क्या होगा, दैट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है ना. अब ये अपन चलो पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है ना. तो चलो अपन क्या करते हैं, एक रिएक्शन ले लेते हैं. एक रिएक्शन लेते हैं. For example, suppose I am having a reaction N2 plus O2, reversible reaction 2NO. Anybody can text me the name of NO? Anybody can text me the name of NO? प्रोडक्ट का नाम क्या है बता सकते हो? Anybody can text me the name of the product? NO. What is the name of NO? क्या नाम है भाई? NO is the nitric oxide. It is the nitric oxide. Okay? The NO is the nitric oxide. चलो खैर, तो ये तो साथ एक रिएक्शन हो गया.
कि when the N2 and O2 react, it form the NO and this is the complete reaction. एक काम करते हैं, कंसंट्रेशन तो पढ़ ही रहे हैं, कंसंट्रेशन के साथ साथ पूरा क्वेश्चन ही कर लेते हैं. पूरा क्वेश्चन कर लेंगे तो एक बढ़िया सा 3 नंबर का क्वेश्चन आपका तैयार होगा. Now anybody can text me what is the effect of temperature on this reaction? Effect of temperature. Anybody can text? What will be the effect of the temperature on this equilibrium reaction? I am just waiting for your response. I will see who will the winner. अब मामला विनर का है तो आप पूरी टीम में से सबसे बढ़िया योद्धा कौन है अब ये चेक करना है. सबसे पहला आंसर कौन लिखेगा? What is the effect of the temperature on this equilibrium reaction? Okay. Kalyani wrote forward direction. Okay, very good. What about others? So Kalyani gave the right answer. Kalyani ने सबसे पहले आंसर दिया. Very good. The equilibrium will shift toward the forward direction. Why? Because the reaction is endothermic in the nature. क्योंकि जो reaction है वो endothermic है ना? So the equilibrium will shift to the forward direction. बहुत बढ़िया, लाजवाब. Okay, very good. So Kalyani, Mayur and Prakhar, Shiman, Vineet, very good. So these 5 students gave me the first answer. Very nice, very good. And what about others? Is it okay to everybody? Is it okay to everybody? Anybody can text. Is this a अच्छा आप तो लिख ही चुके हो ये endothermic reaction है. So what we can say that the effect of the temperature क्या लिखोगे? Equilibrium will shift towards forward direction. Forward direction. Equilibrium will shift towards the forward direction. Very good. Why the forward direction? Because the reaction is endothermic. है ना? क्योंकि रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा. ओके, वेरी गुड. एनीबॉडी कैन टेक्स्ट मी. अब देखो मैंने पहले ही बोला था ना कि आप सब लोग पार्टिसिपेट किया करो लाइव चैट में. दोस्त देखो मेरी बात मानो, है ना? एक मैंने कल बड़ा अच्छा वीडियो भेजा था आपके ग्रुप में. प्लीज टेक्स्ट मी. Did everyone watch that video? What I just sent you yesterday? Please text me. One very relaxed video I just sent to you yesterday. So did you watch it? Okay, very good. Okay, so the meaning is that I know that you people are very much honest student, but please be engaged. Everybody should participate in this live chat. आप जितना चैट में पार्टिसिपेट करोगे ना आपको फायदा आएगा, है ना? एंड डोंट बी लेजी, डोंट बी लेथार्जिक कि 4 लोगों ने लिख दिया यस सर तो मैं क्यों लिखूं भैया यस सर. अभी ऐसा भी होता ना, हिंदुस्तान में एक ये बड़ी प्रॉब्लम है. 4 लोग अगर नमस्ते करते हैं तो 5वां बस यहीं तक कर देता है. अरे कर तो दिया, हम क्यों करें? डोंट थिंक इन सच वे. आपका आंसर आपका है, आपकी मेहनत आपकी है, आपकी अप्रोच आपकी है. ये अप्रोच काम आएगी जिस दिन आप आईटी, जेई और मेडिकल का पेपर दे रहे होंगे, या जिस दिन आप में से कोई बच्चा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा होगा. उस दिन आपका जो इंडिविजुअल अप्रोच है ना वो उस दिन काम आएगा. इसलिए ये मत सोचा करो कि 5 लोगों ने अगर आंसर लिख दिया तो छठा क्यों लिखे, हैं? 5 लोगों ने यस सर कर दिया तो छठा यस सर क्यों लिखे? आई एम नॉट सेइंग दैट. आप मत लिखो यस सर, बट एवरीबॉडी शुड गिव मी द आंसर. दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट. ठीक है ना? सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट. चलो भाई ये हो गया. द सेकंड वन इज, चलो आप मुझे वो लोग आंसर दो जिन्होंने पहले टेम्परेचर का आंसर नहीं दिया था. सो आई वांट दैट कि नाउ द टर्न ऑफ दोस स्टूडेंट हु हैव नॉट रिस्पोंड मी टिल नाउ. अरे बाप रे. ओके, सो अनम इज वेरी स्मार्ट गर्ल. वेरी गुड अनम, शाबाश, वेरी स्मार्ट गर्ल. आई थिंक अनम ने बढ़िया नाश्ता कर लिया भाई, है ना? वेरी गुड. चलो ठीक है, कभी अनम के घर में आना होगा तो पूछूंगा भाई थोड़ा में भी, है ना? कोई नहीं अनम, डोंट वरी. ओके, सो अनम, प्रखर, तन्वी, कल्याणी, रिया, श्रीमंत, निधि, वेरी गुड. और सभी का जवाब लाजवाब. वेरी नाइस, वेरी गुड. So what you can say that no effect of the pressure. And why the no effect of the pressure? Very good. Good. Mayur, Pratik, Ashutosh, Prathamesh, सभी का आंसर बढ़िया. क्यों ऐसा हुआ? Because what we can say that the number of the moles of the reactant are 2 and the number of the moles of the products are 2. Good. Bhushan and Vineet also. Very nice. So अगर दोनों के moles बराबर हो गए तो what you can say that no effect of pressure. No effect of
प्रेशर। ये तुमको मैं तरीका भी बताऊं, दिस इज द वे, यही तरीका है। आपके एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आएगा ना तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा, एंड दैट्स व्हाई द टॉपिक इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ इफ दीस क्वेश्चंस विल कम, दीस विल कम अंडर 2 मार्क और द 3 मार्क। बहुत मजेदार सा टॉपिक है ये, है ना। तो मैं तुम्हें सिखा भी रहा हूं कि अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे प्रेजेंट करोगे, बिकॉज प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, है ना, प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, ठीक है। नाउ सो द नेक्स्ट वन इज, अब ये पढ़ने जा रहे हैं अपन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, effect of concentration. Now what we have to just discuss, what we have to just wrote right in the effect of the concentration, ठीक है ना। चलो, बहुत मजेदार सी बात है, और कंसंट्रेशन का इफेक्ट लिखना सबसे आसान है ना। एक पॉइंट सीख लो और कैसा भी क्वेश्चन आएगा अप्लाई कर लो, इतना मजेदार है। चलो एक बात बताओ, आप मुझे वो लोग आंसर दो जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया, क्या कर पाओगे ऐसा? हो इतने ईमानदार। Now this is the question for those people, है ना, those who did not respond me till now, जिनका अभी तक कोई भी आंसर नहीं आया, मैं उनकी तरफ से क्वेश्चन कर रहा हूं, और मुझे देखना होगा कि क्या वास्तव में वो अपने टीचर्स के प्रति ट्रस्टवर्दी है या ऑनेस्ट है, या वास्तव में उन्हें लगता है कि उनके टीचर कुछ नहीं बता पा रहे हैं। Not their turn. Now, anybody can text me if we will increase the concentration of N2 and O2. ध्यान से सुनो क्वेश्चन, बाकी लोग के लिए भी है। If you will increase the concentration of nitrogen and oxygen, then what will happen? Anybody can text. If you will increase the concentration of nitrogen and oxygen, then what will happen? Anybody can text. अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन आप बढ़ाते हो तो क्या होगा? वेरी गुड, शाबाश, वेरी नाइस। सानिका गिव मी द आंसर, बहुत बढ़िया सानिका, लाजवाब। और भाई, और भी जनता है? ओके, वेरी गुड, इट विल शिफ्ट टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बिल्कुल बिल्कुल सही, कंसंट्रेशन विल बी मोर, वेरी गुड शिवन, बहुत बढ़िया। सो सानिका, कल्याणी, अनम एंड शिवन अगेन गिव मी द राइट आंसर, वेरी गुड प्रखर, शाबाश प्रखर, रिया, शुभम यादव, आशुतोष, तन्वी, स्नेहा, वेरी गुड, स्नेहा का आंसर आया, शाबाश। आर्या सिंह का मुझे आज कोई भी आंसर नहीं आया, आर्या सिंह आज विद अस, वेरी गुड, रिधि, विनीत, भूषण, प्रथमेश, आर्या सिंह माय डियर, आर यू विद अस? आर्या माय डियर चाइल्ड, प्लीज टेक्स्ट मी। ओके, वेरी गुड, Aditi and Kunal also give me the right answer, very nice, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक। सो नाउ व्हाट वी कैन से दैट इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप इनका अमाउंट बढ़ाओगे ना, आपका जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। सीधी सी बात है यार, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब इनको टेम्परेचर चाहिए, एंड इफ द टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, एंड व्हाट विल हैपन, अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट विल बी द मोर, अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट विल बी द मोर, है ना। तो व्हाट वी कैन से दैट, कैसे लिखोगे आप, व्हाइल increasing the concentration of nitrogen and oxygen, while increasing the concentration of nitrogen and oxygen, equilibrium will shift towards which direction? आप सब आंसर लिख ही चुके हो, towards forward direction, ठीक है भाई। तो ऐसे अपने को स्टेटमेंट देना होता है, the equilibrium will shift towards forward direction. Okay, so this is the way that how we have to just write down the answer, कैसे हमें आंसर लिखना होगा ये हमें बताना होगा, ठीक है ना। So this is the way to write down the effect of the pressure, effect of the temperature and effect of the concentration on any equilibrium reaction, ठीक है। So that is the important. So is it okay to everybody? Is it okay to everybody? The question is okay, how we have to present, how we have to write? Please text me. क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा, कैसे अपने को लिखना है? एक बार मैसेज डाल दो जरा, एंड देन आई विल गिव सम क्वेश्चन, है ना, फिर अपन कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। ओके, गुड गुड, शाबाश, वेरी नाइस। सम क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में भी आपके कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत
ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट मी चेक। एक तो किताब में लाया हूं जिसमें है एनसीईआरटी के सवाल, बट मुझे एक बार देखना होगा। या आई गॉट वन क्वेश्चन, वेरी गुड, एक क्वेश्चन मिल गया भाई, है ना। चलो अब एक क्वेश्चन लगाते हैं। ओके, दिस इज द एनसीईआरटी क्वेश्चन माय डियर। मेरे पास एनसीईआरटी किताब तो नहीं है, बट एक टेक्स्ट बुक है, रेफरेंस बुक है, उसमें एनसीईआरटी मिल गया है। तो वेरी गुड क्वेश्चन, आप एनसीईआरटी से देख लेना, क्वेश्चन नंबर लिख लूंगा। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, है ना। उस क्वेश्चन को लगाते हैं तो पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा एंड हाउ वी हैव टू जस्ट राइट डाउन आवर आंसर, और अपने को कैसे अपने आंसर लिखते हैं। ठीक है, चलो द क्वेश्चन इज, सो ये रहा आपके स्क्रीन पे सवाल। क्वेश्चन नंबर है ये 7.29। आई एम नॉट श्योर भाई, मुझे नहीं पता कि ये वही क्वेश्चन है कि तो टेक्स्ट है भाई। हाँ, क्वेश्चन क्या मैं वो लिख दे रहा हूँ। जो मेरे पास जो फ्रेशर है उसका एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, है ना। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 7.29, है ना। क्वेश्चन नंबर 7.29 एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ, describe the effect of, describe the effect of, describe करना है, okay, describe the effect of, the first one is addition of hydrogen, ऐसे क्वेश्चन है, addition of hydrogen, है ना। then second one is addition of methanol, addition of methanol CH3OH. Okay, don't worry Sejal. Sejal, when I will solve this question I will explain my dear, है ना, don't worry। पहले आप कोशिश करो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, है ना। and then removal of carbon monoxide, third one is removal of carbon monoxide, and the fourth one is removal of methanol, removal of methanol, है ना। कब कब क्या क्या चीजों का इफेक्ट होगा बताना है मिथेनॉल ऑन द इक्विलिब्रियम रिएक्शन, ऑन द इक्विलिब्रियम फॉर गिवन रिएक्शन। क्या रिएक्शन दिया है देखो, रिएक्शन दिया हुआ है 2H2 प्लस CO हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, रिवर्सिबल CH3OH, ये दिया हुआ है और ये गैसेस फेज है। या दिस इज द क्वेश्चन, ओके। सो दिस इज द एंटायर क्वेश्चन कि ये हमारे पास इक्वेशन है कि फॉर दिस पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन अगर हम ऐसा ऐसा करेंगे तो इक्विलिब्रियम पे क्या चेंज आएगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड व्हिच डायरेक्शन, है ना। डिस्क्राइब द इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब या तो आप डायरेक्शन बता दो या ये बता दो कि प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा कम बनेगा, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा। सो दैट पार्ट नाउ वी हैव टू डिस्कस। सो इज इट ओके टू एवरीबॉडी? इज द क्वेश्चन स्टेटमेंट ओके टू एवरीवन? प्लीज पहले ये बताओ मुझे, आराम से पढ़ो, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, पहले मुझे टेक्स्ट करो या थंब इंप्रेशन दो। इज द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज ओके टू एवरीबॉडी, या क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम है? तो पहले मैं वो बताऊं। बहुत आसान सा सवाल है, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन पे अगर हम ऐसा ऐसा करेंगे देन व्हाट विल हैपन, दैट पार्ट नाउ वी हैव टू डिस्कस, ओके। चलो नाउ सो द वन बाय वन वी विल डिस्कस। द फर्स्ट वन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। एक एक करके अपन कंडीशन पढ़ते हैं। सो द फर्स्ट कंडीशन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मींस इफ द हाइड्रोजन विल इंक्रीज, अगर हम हाइड्रोजन के अमाउंट को बढ़ाएंगे देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा। चलो भाई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, पहला आंसर। अगर आप हाइड्रोजन को बढ़ाओगे, एनीबॉडी कैन टेक्स्ट मी व्हाट विल हैपन। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। व्हाट विल हैपन इफ द, ओके, शुभम यादव इज द विनर, वेरी गुड शुभम, बहुत बढ़िया शुभम, लाजवाब। शुभम ने सबसे पहले आंसर दिया और बिल्कुल सॉलिड आंसर दिया, वेरी गुड शुभम। सानिका, विनीत एंड रिया, ये चार बच्चों ने लगा दिया है बाउंड्री
आधे दर्जन से ज्यादा नंबर लिए हैं बटोर। वेरी गुड, शाबाश। अदिति, प्रतीक, अनम, आशुतोष, भूषण, मयूर, स्नेहा, प्रथमेश, सीमन, बहुत बढ़िया, लाजवाब। देखो बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप हाइड्रोजन को बढ़ाओगे, सीधा सा लॉजिक है, अगर हाइड्रोजन एडिशन, अगर आप हाइड्रोजन को बढ़ा दोगे तो सीधी सी बात है मिथेनॉल ज्यादा बनने लगेगा। मिथेनॉल ज्यादा बनने का मतलब इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो व्हाट इज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन? दैट इज इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, equilibrium will shift towards forward direction. इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। ठीक है भाई? सो दिस इज द फर्स्ट आंसर, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक, नाउ द सेकंड वन, व्हाट इज द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट? आप चलो बताओ भाई। देखो आपस में भी कंपटीशन खेला करो, ये सारे जो दोस्त हो ना तुम लोग, है ना, आपस में कंपटीशन किया करो। अरे उसने पहले आंसर दिया, इस बार मैं आंसर दूंगा। ओके, तो साहब शुभम ने फिर आंसर दे दिया सबसे पहले। शुभम, विनीत, सानिका, कल्याणी, भूषण, तन्वी, प्रतीक, आशुतोष, प्रखर, वेरी गुड। आदिति, रिया, सीमन, निधि, प्रथमेश, बहुत बढ़िया यार, है ना, ये तो बड़ी जबरदस्त फौज है जो मौज के साथ पढ़ रही है। बढ़िया, प्रथमेश एंड मयूर आल्सो, एंड ऑल द गेव राइट आंसर, दैट इज टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। अच्छा एक बात बताओ, इस श्रावणी पाइपरेज विद अस? मैंने आर्या सिंह को पूछा था, बट आर्या सिंह ने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। शायद आर्या सिंह को नहीं समझ में आ रहा होगा लेक्चर, माइट बी। सो आर्या सिंह ने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया कि आर्या आज है क्लास में कि नहीं है। सो कोई बात नहीं। सो आर्या, आर यू विद अस? एंड श्रावणी, आर यू विद अस? अगर ये बच्चे कम से कम क्लास में तो एक बार टेक्स्ट करें, आर दे विद अस इन आवर लाइव क्लास? ओके, सो नाउ एडिशन ऑफ द मिथेनॉल। अगर मिथेनॉल को आप बढ़ाओगे तो राइट साइड बढ़ गया, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए पीछे जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। सो व्हाट विल हैपन? द इक्विलिब्रियम will shift towards, equilibrium will shift towards backward direction. Backward direction. है ना? The equilibrium will shift towards backward direction. Okay, चलो भाई. The third one is removal of carbon monoxide. What will happen? अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को कम कर दें, हटा दें यहां से, then what will happen? Anybody can text? What will happen when the removal of carbon monoxide will be there? Okay, very good, answers are coming. Shabash. So Shubham, Kalyani, Anam, Shriman, Sanika, Pratik, Riya, Aditi, Ashutosh, Nidhi, Mayur, Tanvi, Pratmesh, Vinit. Very good. All the students wrote again the right answer. बहुत बढ़िया, लाजवाब। ठीक, अब CO अगर कम कर दोगे तो प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट ही कम हो गया। गुड सेजल, शाबाश। एक रिएक्टेंट अगर कम हो गया तो फिर अभी ये कम हो गया, तो फिर इसको पीछे आना पड़ेगा इसको मिनिमाइज करने के लिए। सो अगेन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द बैकवर्ड डायरेक्शन। बहुत बढ़िया। जस्ट अ मिनट, या गुड, राइट, वेरी नाइस। भूषण आल्सो गिव मी द राइट आंसर, वेरी गुड। सो द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना? यहां पर भी क्या होगा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा, दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। And what is the answer of the fourth part? What is the answer for the fourth part? Removal of, very good, बहुत बढ़िया। अब देखा, पूरा टॉपिक अगर अच्छे से समझ लिया तो चौथा पार्ट अपने आप आ गया, बहुत बढ़िया। The equilibrium will shift towards forward, है ना? क्योंकि अभी आप प्रोडक्ट को हटा दे रहे हो, इसी को कम कर दोगे तो आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। वेरी गुड, अवश्य। The equilibrium will shift towards forward direction, है ना? The equilibrium will shift towards forward direction. Very good स्नेहा, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो सारे बच्चों ने बढ़िया जवाब लिखा, the equilibrium will shift towards forward direction। ठीक है, very nice, लाजवाब। Okay, so these type of the questions will come on the basis of the Leach and Frears principle, the effect of the
various factor on the equilibrium and how we have to solve the question, how we have to present that part today I discuss with you. ठीक है बच्चों, ये मैंने आपसे डिस्कस किया. So now what is the homework? So now today you please be ready. आप अगर ध्यान दो तो मैंने बहुत दिनों से आपको कोई भी होमवर्क नहीं दिया है ना, ना गूगल क्लासरूम पे ना व्हाट्सएप पे, कुछ भी नहीं. बट टुडे वन एक्सरसाइज आई विल गिव टू यू based on chemical equilibrium. Please solve that. Hope so. Tomorrow I will take the lecture on the ionic equilibrium, or from Monday I will start. है ना, आराम से पढ़ो, मजे से पढ़ो, है ना, टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है. हाँ, बट ईमानदार रहो. ईमानदार होना बहुत जरूरी है ना. ईश्वर पे श्रद्धा रखो और ईमानदार हो. These two terms are very much important. So in the next class I will discuss with you the ionic equilibrium. Till then, goodbye, शबा खैर, खुदा हाफिज, मजे में रहो. ठीक है, और ये क्वेश्चंस रिवाइज करो. टुडे वन वर्कशीट आई विल गिव यू बेस्ड ऑन द केमिकल इक्विलिब्रियम. प्लीज सबमिट, है ना, बाय टुडे और बाय टुमारो, टिल टुमारो. थैंक यू सो मच. गुड बाय, टेक केयर.